dear and loving students, welcome back to my YouTube channel. So I am Ruksar ma'am. So today I am here with the rest of the chapter of Standard 9, that is chapter number 8, that is framing of the Constitution and its feature. So my dear student, in my previous videos we have seen that what is Constitution and what is the process of framing Constitution. And even we have seen that in my part 2 video, that is what is preamble and what is pillars of preamble. So dear students, I hope that you all have watched my part 1 and part 2 video. If you haven't, then you must watch the part 1 and part 2 video, because now in part 3 video today we are going to discuss basic features of Constitution. Today we are going to study that. Okay dear student, so if you haven't seen that part 1 and part 2 video, so just now go to my YouTube channel and watch that part 1 and part 2 video. Then you can go through the explanation of part 3 video. Okay dear student, so let us start the rest of the chapter, basic features of the Constitution. So I will explain you line by line. Basic features of the Constitution. The Constitution, which came into force on 26 January 1950, is considered as the largest, extensive and detailed written document. Now the Constitution which came into the force means जब Constitution force में आया यानी practically implement हुआ, practically citizens को मिला 26 जनवरी 1915 में, ठीक है, तो उसे क्या माना गया, इज कंसिडर एज द लार्जेस्ट, बहुत बड़ा और एक्सटेंसिव और डिटेल डॉक्यूमेंट माना गया. गिवन बिलो इज द बेसिक एंड साइलेंट फीचर्स ऑफ इट, और नीचे आपको कुछ उसके बेसिक और साइलेंट फीचर्स दिए गए हैं, ठीक है. वी विल डिस्कस one by one the basic and silent feature of the Constitution. Okay dear student, let's see the first basic feature of our Constitution. Except Britain and Israel, India along with other nations of the world have their constitution in written form. Now except इसराइल और ब्रिटेन को एक्सेप्ट करते हुए वर्ल्ड के इंटीरियर जितने भी नेशंस है अलॉन्ग विद इंडिया, सभी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन फॉर्म में है, लिखित फॉर्म में. ओके, considering the social, geographical, diversified circumstances and prehistorical notions, the Constituent Assembly has kept the drafted constitution in written form. ओके, ये सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए, सोशल, जोग्राफिकल, डाइवर्सिफाइड सर्कमस्टेंसेस, प्री हिस्टोरिकल नोशंस, इन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए हमारी जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है उसने हमारे ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन को रिटर्न फॉर्म में ही रखा. ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन. Next one is size of the Constitution. Now, what is the size of our Indian Constitution? Indian Constitution is divided into 22 sections, comprising 395 articles and 8 appendices. Now it is 12. Now Indian Constitution 22 sections में divided है, और उसमें कितने आर्टिकल्स है, 395 आर्टिकल्स है और 8 appendices है, जो नाउ करंटली कितने हो गए, 12 appendices हो गए, ठीक है. The Constitution comprises provisions for state administration and states. Okay, interrelations, fundamental rights, principles of political policies, judiciaries, election commission, government institution, minorities, scheduled castes and deprived groups. Now the Constitution comprises provisions. Now Constitution में कौन कौन से provisions है, regarding किस किस चीज़ों के regarding provisions है, for state administration and state inter रिलेशंस. नाउ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है, स्टेट इंटर रिलेशंस के लिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए है, प्रिंसिपल फॉर पॉलिटिकल पॉलिसीज, प्रिंसिपल फॉर पॉलिटिकल पॉलिसीज के लिए, जुडिशरीज के लिए, इलेक्शन कमीशन के लिए, गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस के लिए है, माइनॉरिटीज़ के, शेड्यूल कास्ट के लिए है और डिप्राइव्ड ग्रुप्स के लिए भी है, ठीक है. Therefore, our Constitution of India is the largest, extensive and detailed written document compared to the other constitution. Now, इसीलिए इतनी सारे provisions उसमें डिटेल में इंक्लूड है. That's why the Constitution of India is largest, सबसे ज़्यादा largest और extensive यानी बहुत बड़ा और घना
डिटेल रिटर्न डॉक्यूमेंट है, बहुत ही डिटेल में लिखा हुआ एक डॉक्यूमेंट है एज कम्पेयर टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर नेशन। अदर नेशन के कॉन्स्टिट्यूशन के कंपैरिजन में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही लार्जेस्ट, एक्सटेंसिव और डिटेल रिटर्न डॉक्यूमेंट है। ओके, नेक्स्ट थर्ड वन, सिंगल सिटीजनशिप। इन अमेरिका ड्यूअल सिटीजनशिप इज गिवन। नाउ अमेरिका में कितनी सिटीजनशिप दी जाती है? ड्यूअल सिटीजनशिप दी जाती है, वन फॉर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड अनदर फॉर द स्टेट सिटीजनशिप। ड्यूअल सिटीजनशिप दी जाती है, वन फॉर अमेरिका, अमेरिका के लिए दी जाती है, एंड अनदर फॉर स्टेट सिटीजनशिप, यानी एक कंट्री के लिए दी जाती है और दूसरी स्टेट के लिए दी जाती है, ठीक है। बट इन इंडिया देयर इज ओनली सिंगल सिटीजनशिप इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रीजन और स्टेट ऑफ द कंट्री। बट इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाती है इररिस्पेक्टिव, फिर चाहे आप कोई भी रीजन में हो या किसी भी स्टेट में हो कंट्री के। ओके, ओनली सिंगल सिटीजनशिप इज गिवन इन इंडिया। ओके, ओनली सिटीजन्स ऑफ जम्मू कश्मीर हैव ड्यूअल सिटीजनशिप, बट इंडिया में ओनली द पीपल्स ऑफ जम्मू कश्मीर, उनको उनके अलावा सभी को सिंगल सिटीजनशिप दी जाती है। बट द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर, उनको ड्यूअल सिटीजनशिप दी जाती है, वन फॉर इंडिया अनदर फॉर द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। एक उनको इंडिया के लिए दी जाती है और दूसरी जम्मू कश्मीर के लिए दी जाती है। Okay, dear student, let's see the next one, that is fourth one, the center with the strong federal structure. India is a union of states. Now we call India a union of states because जब अलग अलग states का combination करते हैं तो एक nation create होता है, that is India. That's why we call India is a union of states, क्योंकि इंडिया बहुत सारे states का union है। There is nowhere any reference of the word federal in the constitution. Constitution में जो word federal दिया गया उसका कहीं भी reference नहीं है। Okay, union of state is the sentence used for India. हम union of states एक sentence use करते हैं इंडिया के लिए। We indicate India by the union of states, ठीक है। By the use of word union, इस वर्ड का यूज़ कर हम क्या करते हैं? ए परमानेंट एंड इरिवर्सिबल रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड इट्स कंपोनेंट स्टेट इज इंक्लूडेड। हम इस वर्ड का यूज़ करके परमानेंट और इरिवर्सिबल रिलेशन क्रिएट करते हैं यूनियन और उसके स्टेट के बीच। ओके, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड नो स्टेट हैज़ राइट टू सीसीड इट। ओके, इंडिया क्या है? एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है और किसी भी स्टेट को राइट नहीं है, ये अधिकार नहीं है कि वो अपने आप को इंडिया से ससीड यानी अलग करे, ठीक है। दस इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स yet it is has some element of federal government. Thus इंडिया क्या है? इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स है, उसके बावजूद क्या है? येट इट हैज़ सम एलिमेंट्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, फिर भी उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं जो फेडरल गवर्नमेंट के हैं। इन इंडियन फेडरेशन देर आर टू सेट्स ऑफ गवर्नमेंट्स। इंडियन फेडरेशन में जो इंडियन फेडरेशन है उसमें दो तरह के सेट्स है गवर्नमेंट के। विच वन? द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। वन इज यूनियन गवर्नमेंट जो यूनियन लेवल पर होती है, स्टेट गवर्नमेंट दैट इज अवेलेबल ऑन स्टेट लेवल। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ क्लियरली मार्क्ड द एरिया ऑफ फंक्शनिंग फॉर बोथ द काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट। नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है? क्लियरली मार्क किया है दोनों गवर्नमेंट का फंक्शनिंग एरिया, मतलब स्टेट गवर्नमेंट का क्या काम है और यूनियन गवर्नमेंट का कौन सा फंक्शनिंग है, ये एरिया कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली मार्क किया है दोनों गवर्नमेंट्स के लिए। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन डिमार्केट्स द पावर ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट इन द डिफरेंट लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है? कॉन्स्टिट्यूशन ने डिवाइड किया है पावर्स, किसके बीच का? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच का जो पावर्स है उसे डिमार्केट्स यानी डिवाइड किया गया है अलग अलग लिस्ट में, ठीक है, उसे अलग अलग डिफरेंट लिस्ट में डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज यूनियन लिस्ट। नाउ लेट अस सी व्हाट इज यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट कंप्राइजेस 97 सब्जेक्ट। यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट होते हैं डियर स्टूडेंट्स? 97 सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड इनटू द यूनियन लिस्ट। ओके, सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस लाइक डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, एटॉमिक एनर्जी, बैंकिंग, रेलवे, कम्युनिकेशन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स आर इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट। नाउ कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं यूनियन लिस्ट में? सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस इंक्लूडेड होते हैं जैसे कि डिफेंस के,
फॉरेन अफेयर्स, एटॉमिक एनर्जी के, बैंकिंग के, रेलवे के, कम्युनिकेशन के, पोस्ट एंड टेलीग्राफ के, ये सारे सब्जेक्ट्स यूनियन लिस्ट में इंक्लूड होते हैं, ठीक है, नेशनल इंपॉर्टेंस के। नाउ नेक्स्ट सेकेंड, स्टेट लिस्ट। नाउ व्हाट इज स्टेट लिस्ट, लेट अस सी। द स्टेट लिस्ट comprises 66 subject. Now whereas in union list there are 97 subject, तो स्टेट लिस्ट में कितने दिए गए हैं, 66 सब्जेक्ट्स आपको दिए गए हैं, ओके। द स्टेट लिस्ट comprises of those important subjects on which the state legislature house can pass laws. नाउ स्टेट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया गया है, स्टेट लिस्ट कंप्राइजेज ऑफ दोज इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, ऐसे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया गया है जिस पर स्टेट लेजिस्लेचर हाउस लॉस बना सकते हैं, ठीक है, ऐसे सब्जेक्ट्स को स्टेट लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। सब्जेक्ट्स लाइक लॉ एंड ऑर्डर, कौन से सब्जेक्ट, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर, स्टेट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के बारे में, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन के बारे में, हेल्थ, लैंड, इंटर स्टेट ट्रेड के बारे में, एंड कॉमर्स आर इंक्लूडेड। ये सारे सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में इंक्लूड किए गए, ठीक है। इफ देयर इज अ फेलियर ऑफ लॉ और ऑर्डर इन द स्टेट, द यूनियन गवर्नमेंट विद कंसेंट और अगेंस्ट द विल ऑफ द स्टेट कैन सेंड रिजर्व पुलिस फोर्स। नाउ देखो यहाँ पर, इफ देयर इज फेलियर ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट, स्टेट और स्टेट के इंटीरियर कोई भी लॉ और ऑर्डर का फेलियर होता है तो यूनियन गवर्नमेंट स्टेट के कंसर्न से या फिर उसकी मर्जी नहीं है फिर भी वो क्या करती है, उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट करती है और क्या करती है, वहाँ पर रिजर्व पुलिस फोर्स सेंड करती है, ठीक है, फिर चाहे स्टेट की मर्जी हो या ना हो, अगर स्टेट में कोई लॉ एंड ऑर्डर फेल हुआ है तो, ओके। नाउ लेट्स सी द थर्ड वन, दैट इज concurrent list. In addition to this, the constitution provide for a third list that is called concurrent list. Now in addition to this list, ये list के addition में क्या हो रहा है, constitution ने हमें third list provide की है जिसे हम concurrent list कहते हैं, which consist of the subject of the common concern both to the center and the state government. Now इसमें ऐसे subject include है जिसपे दोनों स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट का दोनों का कॉमन कंसर्न है, मतलब दोनों मिलकर डिसीजंस ले सकते हैं। द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन पास लॉज ऑन दिस सब्जेक्ट, जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है दोनों इन सब्जेक्ट्स पर लॉज पास कर सकते हैं, ठीक है। द concurrent list has 47 subject. Now dear student, you have to remember, यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स थे, 97 सब्जेक्ट, स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट एंड concurrent लिस्ट में 47 subjects are included, ठीक है। This list includes subjects like criminal and civil procedure, marriage and divorce, education, economic planning, trade union, etc. इसमें कौन कौन से subjects include होते हैं, जस्ट क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीजर, मैरिज एंड डाइवोर्स के, ठीक है, एजुकेशन, इकोनॉमिक प्लानिंग, ट्रेड यूनियन एटसेट्रा, ये सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं, ओके डियर स्टूडेंट। अंडरस्टैंड व्हाट इज सेंटर विद द स्ट्रॉन्ग फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है, और उसमें हमने फंक्शनिंग देख लिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो डिवाइड किए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट लेट अस सी रेसिडुअरी पावर। अभी रेसिडुअरी पावर क्या है, दैट वन अनदर थिंग इज गिवन टू रेसिडुअरी पावर, लेट्स सी, दैट इज अवेलेबल टू यू ऑन पेज नंबर 61। रेसिडुअरी पावर, the subject which are not specifically allotted to the union or state are included into the residuary power. Now another power is given to you, the subject which are not specifically allotted to union, मतलब specifically किसी को भी allot नहीं किए गए, ना तो union को ना state को, ऐसे सब्जेक्ट्स किस में इंक्लूड होते हैं, रेसिडुअरी पावर्स में। मैटर्स दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन द डिवीजन ऑफ द पावर्स आर नोन एज रेसिडुअरी पावर। अनदर वे में आपको दिया गया है, जो मैटर्स क्या है, जो मैटर्स, जो प्रॉब्लम्स, जो पावर्स है वो किसी भी डिवीजन में इंक्लूड नहीं हुए, ऐसे पावर्स को रेसिडुअरी पावर्स कहा गया है, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज गिवन द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दिस रेसिडुअरी सब्जेक्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया है इस चीज़ पर, इस रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स पर डिसीजन लेने का, ओके।
The financial distribution of resources is done between union government and state government. जो financial distribution होता है इनकम का वो दोनों के बीच में होता है, यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है। फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन दोनों गवर्नमेंट के बीच में होता है, यूनियन एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। जैसे कि एक्साइज एंड कस्टम, export import, income tax, all these major taxes are decided by the central government. Now excise and custom, export import, income tax, ये सारे major taxes किसके थ्रू डिसाइड होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। while सेल्स टैक्स, रेवेन्यू टैक्स, ये सब एंटरटेनमेंट टैक्स, एजुकेशन टैक्स which are having major financial resources are decided by the state government, और state government ये वाले taxes decide करती है। Okay dear student, now I think you will get an clear idea about the center with the strong federal structure. Now dear student, let us see unified arrangement during crisis. Now what is next feature is given to you, unified arrangement during crisis. Now किस तरह की अरेंजमेंट होती है जब कोई क्राइसिस या कोई बड़ी प्रॉब्लम अकर होती है एक नेशन पे। देयर आर 3 प्रोविजंस फॉर एमरजेंसीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 3 तरह के प्रोविजंस दिए गए रिगार्डिंग द एमरजेंसीज व्हेन एमरजेंसी अराइजेज। फर्स्ट वन इज नेशनल एमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड एट द टाइम ऑफ द वॉर, एक्सटर्नल अटैक और आर्म्ड रेबिलियन। जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है, जब कभी युद्ध हो जाता है या कोई अनदर नेशन वाला हमारे नेशन पे अटैक कर दे या फिर आर्म्ड रेबिलियन हो जाता है, तब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है। फर्स्ट केस आपको दिया गया, 3 केसेस बताया गया है, 3 केसेस में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है। फर्स्ट वन कौन सा है, अभी हमने डिस्कस किया, जब कोई वॉर हो या एक्सटर्नल अटैक हो या आर्म्ड रेबिलियन हो तब, ठीक है। नेक्स्ट वन, ड्यू टू द लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक डाउन, अगर लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक डाउन हो रहे हैं, द स्टेट कैन नॉट फंक्शन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और कोई भी स्टेट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम नहीं कर पा रहा है, सो द कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर, तब कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है, ठीक है। एंड द थर्ड वन, now let us see the third one, due to the increase in the prices, प्राइस कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, देयर इज मॉनेटरी वैल्यू इरोजन, मॉनेटरी वैल्यू की इरोजन हो रहा है, यानी बहुत ज़्यादा इरोजन हो रहा है, उस टाइम पर फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बीन गिवन मोर पावर टू डील विद दिस एमरजेंसीज। एट द टाइम ऑफ एमरजेंसी इंडिया इज ऑलमोस्ट टर्न इनटू द यूनिटरी सिस्टम। नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पावर दिए गए हैं इन एमरजेंसीज के साथ डील करने के लिए, सबसे ज़्यादा पावर ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं, ठीक है। एट द टाइम ऑफ एमरजेंसी, और जब ये एमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है तो इंडिया ऑलमोस्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक यूनिटरी सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, okay dear student, we will study the rest of the feature in my part 4 video. So I hope dear student you will get a clear view about these 5 features. So keep watching and wait for my 4th video. So stay home, stay safe. Thank you so much.